Hello guys, welcome back to my channel. I guess I'm too over enthusiastic for the love that you have been showering on my YouTube channel after me being so much inactive. I feel like I owe you guys an apology for that, but I can't help because there were just too much stuff that was happening in my life. And now let's just begin the video. Okay, so why not to hate maths? I guess there have been a lot of YouTube videos that will tell you that you should love maths, why you should love maths, and things like that. But here I am telling you something different, which I always try to do on my YouTube channel, is not to hate maths. So I have precisely 4 solid reasons that will tell you why you guys should not hate maths. So first would be the basic, that is, it tells you that it has some basic ways of solving a problem. So what does it mean is like, if I say what is 2 plus 2, you'll be like it's 4. This is something, the basics, that will always be helpful, and it will be helpful in your regular life as well. Matlab addition, subtraction, multiplication, division, it will help you in your regular life. But besides that, ऐसा है ना कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि सपोज x फाइंड करना है, सो कॉल्ड x फाइंड करना है आपको किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम 2-3 वेज होंगे एंड बियॉन्ड दैट नहीं है. तो ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू गो इनटू क्रिएटिव राइटिंग व्हेन इट कम्स टू राइटिंग योर आंसर्स इन इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंसेस. ऑल्दो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है दैट यू हैव टू बी लाइक 1-2 चीज़ें ही हैं जो मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे. बट बिसाइड्स दैट अगर आप वो चीज़ें नहीं भी लिख रहे हो, टीचर्स गिव यू मार्क्स और टीचर्स डिडक्ट योर मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ क्रिएटिव you are, and teachers can be relative in their marking. But with maths it will not happen. आपको फॉर्मूला आता है, either you know it, either you don't know it. You start doing it, आप कुछ करोगे, you'll be like कि स्टेप मार्किंग के मुझे कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, and that marks is again a motivation. मार्क्स दिखते हैं, इफ़ हमें 100 में से 80 नंबर दिख रहे हैं, एक मोटिवेशन मिलेगी, यार बिना पढ़े इतने आ गए, तो सोचो अगर मैं पढ़ती, अगर सोचो मैं पढ़ता तो कितने आ जाते. दैट इज़ अगेन अ मोटिवेशन. द सेकेंड इज practice. Maths teaches you how to practice. Maths teaches you rejection. That's the biggest learning I think maths had taught me for real life, that it teaches you rejection. Even after trying to solve a problem for like 100 times, I can be wrong 101 time. So अगेन वो तुम्हें रिजेक्ट होना सिखाता है, वो तुम्हें सिखाता है कि यार नहीं, तुम अपनी लाइफ में जितने मर्जी कॉन्फिडेंट हो किसी चीज़ को लेकर, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. बिकॉज इफ़ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स इन योर लाइफ, इट विल बी रॉन्ग. समटाइम्स इट हैपन्स इन पेपर्स कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, एंड कई बार होता है कि यार पेपर में नहीं हुआ बिकॉज यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट. तो दैट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ बैड फॉर यू. तो इट टीचेस यू कि तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना इन टच रहोगे चीज़ों से, उतना तुम अच्छे रहोगे. बिकॉज आई फील कि आई हैव हर्ड दिस कोट समवेयर अराउंड दैट व्हेन पीपल से दैट अ पर्सन हु knows everything, a person who knows everything is a master of none, but still is still better than a master of one. So which simply translates कि ठीक है यार, तुम्हें सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, बट सिर्फ अगर एक चीज़ ही ढंग से आती है तो वो भी कोई वैल्यूएबल नहीं है. तुम्हें अलग अलग चीज़ें कुछ प्रोपोर्शन में आनी चाहिए. दैट्स वाई हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं कि उसमें से मुझे 2-3 अच्छे से आए. इट्स नॉट कि तुम एक सब्जेक्ट को ही पकड़ के खींचते रहो. द नेक्स्ट थिंग इज it requires logic more than creative writing, and answering the questions would be
that would not be depending upon your imaginative power. See, people struggle with imagination, I believe, because our Indian education system is such that it will not allow you to imagine. They don't support imagination. It is changing with time, but the way we are growing, it doesn't support imagination. When I say, can you imagine a blue elephant flying in a sky? Kids might say yes, but as an adults we'll be like, no yaar, we know that an elephant is grey and he or she cannot fly. We know that. So ऐसा नहीं है. तो it because it's the lack of imagination power. हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें. एंड अगर वो लैक ऑफ इमेजिनेशन पावर हमारे अंदर है, एवरीबडी नोज तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं. सिमिलरली कि तुम्हें लगता है कि यार नहीं, मेरी इमेजिनेटिव पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैथ्स इज समथिंग दैट विल हैव ओनली 2-3 बेसिक ways of solving a problem. So why not master that? And I believe that many people, you know, because of this tuition culture, when they do maths, क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें tuition teachers are like, because you need to score good marks, you need to score good marks, you need to score 100 on 100, they make you learn the methods. वो तुम्हें समझाने बैठ जाएंगे. समझाने नहीं बैठते. they like कि a plus b का whole square क्यों होता है वो ये नहीं बताएंगे. they'll be like a square plus b square plus 2ab. that's it. that is it. वो तुम्हें ये बताएंगे कि ये ऐसा है, दिस इज़ द सेकेंड आइडेंटिटी, दिस इज़ द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. दैट्स वाई ऐसा होता है कि 10th के बाद इफ़ यू लीव मैथ्स, तो अगर मैं तुमसे 2 साल बाद पूछ रही हूँ रिमेंबर दैट आइडेंटिटी, पीपल टेंड टू कन्फ्यूज़ कि यार नहीं ऐसा था कि वैसा था. बिकॉज वी हैव लर्नड इट. हमने वो मेमोराइज़ करी है और हम उससे टच में नहीं है, तो हम याद नहीं रख पाएंगे. बट सिमिलरली अगर आप समझने की कोशिश करो कि वाई इज़ दिस आइडेंटिटी द वे इट इज़, वो ऐसी क्यों है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्यों है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी. इंटरेस्ट लेके देखोगे एक बारी तो कैसे नहीं आएगी समझ. ये सोचोगे ना, इफ़ यू चैलेंज योर सेल्फ कि यार मुझसे कैसे नहीं होगा, इट विल हैपन, इट विल डेफिनेटली हैपन. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट the most favorable reason, the most favorable argument that I think I can put that why not to hate maths is that it is definitely used in real life. People will be like यार क्या मैं डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, उसका रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी क्या है. मुझसे कौन बोलेगा कि एंगल के क्वेश्चंस हैं, ये 45 डिग्री पे ये लैम्प है, ये गिर गया तो इसका क्या मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा. वाइल भी आई लाइक कि मुझे टैन थीटा क्यों निकालना है, मुझे कॉस थीटा क्यों निकालना है, उस चीज़ से क्या रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, कुछ है ही नहीं. मुझे कौन बोलेगा कि सब्जी लेने जा रहे हो बेटे डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ. ऐसे नहीं होगा, फॉर श्योर ऐसे नहीं होगा, बट रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी है. एंड व्हेन आई से रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी है, आई वुड टेंड टू आर्ग्यू टू दोज किड्स जो सोच रहे हैं कि यार हमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, ऐसे वाले सब्जेक्ट्स लेने हैं. उनको तो थोड़ा, बिकॉज यू नो दीज आर द 2 मेन फोकस ऑफ द किड्स जो मेरे चैनल पे एक्चुअली गो थ्रू कर रहे हैं इन चीज़ों को. प्लस यू नो 11th-12th के बच्चे कि उनको आई थिंक ये चीज़ समझ आनी बहुत ज़रूरी है. व्हेन दे लाइक काउंटर बैक, यार क्या है, मुझे तो नहीं बोलेगा ना कोई सब्जी वाला बेटा डेरिवेटिव निकाल के दो तभी 2 रुपये कम करूँगा आपकी सब्जी में, ऐसा नहीं होगा. बट रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी क्या है इस चीज़ की. तो एक बहुत छोटी चीज़ से स्टार्ट करती हूँ एंड देन आई विल गो इनटू अ कॉम्प्लेक्स थिंग जो दोनों चीज़ों को कैटर कर सके. डिफ्रेंसिएशन, फॉर एग्जांपल डिफ्रेंसिएशन इज़ डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो हम निकालते हैं. आई गेस आप लोगों को 10th 11th में सिखाएंगे डेरिवेटिव क्या होता है. dx अपॉन dy की टर्म्स में आता है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन. अब डिफ्रेंसिएशन क्या है. डिफ्रेंसिएशन इज कैलकुलेटिंग एट द रेट, एक रेट है जिसके बेसिस पे क्वांटिटी कितनी चेंज होगी एक चीज़ की, वो हमें डिफ्रेंसिएशन बताता है. अब मैं ऑब्वियसली मुझे ये नहीं बोलेगा, मुझे भैया जो सब्जी दे रहे हैं वो मुझे ख़रीद के मेरे को बता देंगे कि ठीक है यार इतने का पहले इतने का था अब इतने का हो गया, महंगाई बढ़ गई कैसे. बट वो महंगाई कैसे बढ़ी, महंगाई बढ़ना इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है. अगर किसी ने इन्फ्लेशन टर्म सुना है बट उसे नहीं आ रहा समझ व्हाट इज़ दैट, इन्फ्लेशन इज़ महंगाई बढ़ना. इकोनॉमी में महंगाई बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं. सो
डेरिवेटिव्स हम कब यूज़ करते हैं कि यार जब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी होगी ना, हम डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे। अब रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, अब ये चीज़ आपकी यूज़ होगी जब आपको एक्चुअली में पैसा कमाना है। सपोज आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, ठीक है, मैं बोलूँगी आपको, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ रिलायंस का, टाटा मोटर्स, ये ऐसे स्टॉक्स है जो इवेंचुअली इन अ लॉन्ग रन आपको दे के ही जाएंगे, कुछ आपसे लेकर नहीं जाएंगे। आपने कोई स्टॉक खरीदा, आपको प्रिडिक्ट करना है कि मैंने इस टाइम पे ये स्टॉक इतने का खरीदा है, यार ये कितना नीचे गिर सकता है, ये कितना ऊपर जा सकता है। अब आप बोलोगे मुझे क्यों प्रिडिक्ट करना है, इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑल्दो इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, बट सॉफ्टवेयर्स कभी गलत हो सकते हैं, और आपको सॉफ्टवेयर में कैसे कैलकुलेट करनी चीज़ें, कैसे देखना है, वो तो आना चाहिए। तो वो हमें ये सिखाता है। आपने सॉफ्टवेयर में डिजिट्स डाल दिए, उसने आपको डिजिट्स दे दिए, आपको डिजिट्स पढ़ने भी तो आने चाहिए, आपको समझने भी तो आने चाहिए। एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना आता तो आपको ओरल करना आना चाहिए। आपको जॉब्स मिलेंगी इस बेसिस पे आपको जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। अब ये बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने बताया डिफ्रेंसिएशन कैसे यूज़ होती है रियल लाइफ में, जो आई डोंट थिंक कि आपको ट्यूशन टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स इतनी डिटेल में समझाएंगे। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पे जाती हूँ, ठीक है, इकोनॉमी है हमारी, समझो दिस इज़ एन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी कुछ थियोरीज पे चलती है, जैसे साइंस किसी थियोरी पे चलती है, ऐसे इकोनॉमी भी किसी थियोरी पे चलती है कि हर टाइम पे कुछ पैटर्न्स आ रहे हैं, कुछ पैटर्न्स की वजह से इकोनॉमी रन कर रही है। जैसे कोविड की वजह से इकोनॉमी पे एक इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। ऐसे ही एक बहुत टाइम पहले की एक थियोरी है जिसे हम बोलते हैं माल्थुसियन थ्योरी। वो हमें क्या बताता है, वो डिफ्रेंसिएशन की ही पहले की, मतलब डिफ्रेंसिएशन का मैंने आपको बहुत जनरल बताया, कॉम्प्लेक्सिटी में जाऊँ अगर मैं, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करता है और वो बताता है हमें दैट हाउ पॉपुलेशन विल ग्रो। इट शोज कि पॉपुलेशन चेंज कैसे होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पॉपुलेशन इज सच अ बिग थिंग, आपको प्रिडिक्ट करनी है कि कितनी बढ़ जाएगी आगे जाके पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, किस स्पीड से बढ़ रही है, चाइना की कितनी हो जाएगी, कम होगी तो क्यों होगी, वो फैक्टर्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स हेल्प करती है हमारी। और इकोनॉमिक्स बेसिस मैथ से आता है, मैथमेटिकल इक्वेशन से आता है। माल्थुसियन थ्योरी की अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो आप बोलोगे रीड करके देखो, आई हैव नो डाउट इन एक्सप्लेनिंग कि माल्थुसियन थ्योरी कैसे वर्क करती है, क्या है, बट इट इज़ बेसिकली रिलेटेड, वो पॉपुलेशन को विद टाइम से बताता है थ्रू सेक्स, ठीक है। वो सेक्स के थ्रू बताता है कि यार ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रो कैसे करेगी, थ्रू सेक्स। वो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं इन चीज़ों को, बट अलग अलग थियोरीज हैं। ये सब इकोनॉमिक्स ही हमें बताती है और ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में नहीं बताया जाता। तो मैनी पीपल विल बी ऑन माई चैनल कि यार मैं इकोनॉमिक ऑनर्स कर रही हूँ बट मेरे पास मैथ्स नहीं है। ओके डूड, आई एग्री, आपके पास मैथ्स नहीं है, बट मैथ्स बेसिस है। एंड मैंने DU के पर्सपेक्टिव से बताया था, DU में कंपलसरी था मैथ्स, अदरवाइज ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं मिलता। हो सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो या अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, कोर्सेज़ के पैटर्न्स इतने चेंज हो रहे हैं। मेरी वीडियो को आए हुए बहुत टाइम हो गया है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज आता रहता है। चेंजेस होंगे, फॉर श्योर चेंजेस होंगे, नो डाउट इन दैट, बट उसको समझो, थोड़ी चीज़ों को समझो। आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, उस बेसिस को समझने के लिए आप उस मैथमेटिकल इक्वेशन को नहीं समझ पाओगे, आप इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाओगे। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं पता, आपको माल्थुसियन थ्योरी समझ नहीं आएगी। सिमिलरली अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं पता तो आप आगे चीज़ों को ब्रेक डाउन करके लॉगरिथमिक फंक्शंस नहीं लगा पाओगे। एंड ये चीज़ें रियल लाइफ में यूज़ होती हैं टू प्रिडिक्ट। इकोनॉमिस्ट ऐसे नहीं प्रिडिक्ट करते इकोनॉमी को, अच्छा यार अभी ये चल रहा है, आगे चल के ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें। बहुत चीज़ें प्रिडिक्शंस जो होती है ना, जो हम देखते हैं कि यार इतने गोल्ड की वैल्यू कितनी चली जाएगी, स्टॉक्स की कितनी चली जाएगी, ये सब चीज़ें रियल लाइफ में यूज़ होती है। सब्जी का भाव कितना बढ़ेगा, ये बात भी हमें मैथ्स और इकोनॉमिक्स ही बताती है। तो रीजंस बहुत हैं, बट वो एक वो होता है ना कि जिसने नहीं करना वो 100 बहाने ढूंढ लेता है इस चीज़ को करने के लिए, ये वो वाली बात है। ट्राई करो, नहीं होगा नहीं होगा, किसने बोला है करना ज़रूरी है। ट्राई करके देखो, क्या पता इंटरेस्ट आए। तो इट्स गुड टू ट्राई थिंग्स, ट्राई आउट,
टेक स्टेप बाय स्टेप. इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूट्यूब के थ्रू. बायजूस इतनी अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करता है व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स. ट्राई दैट आउट. नॉट प्रमोटिंग एनीवन बट ट्राई दैट अगर अफोर्ड कर सकते हो. अदरवाइज ट्यूशन टीचर्स को काउंटर बैक करो यार, हमें बताओ कैसे है. अगर उनको नहीं आता चेंज योर ट्यूशन टीचर. रटना थोड़ी है मैथ्स. आई एम टेलिंग यू कंटिन्यू इट फर्दर. मैथ्स कैलकुलेशंस खत्म हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, बट समझ आएगा तभी सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर पाओगे. कैलकुलेशंस हेल्प नहीं करेंगी. मैं आपसे पूछूंगी ना 4 लाख में से आपने 3,09,000 रुपये हटा दिए तो कितने बचे, ये चीज़ें नहीं आएंगी. आपको बेसिक्स आने चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. ओके, सो आई थिंक दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो. बहुत एंगर में आ जाती हूँ व्हेन इट कम्स टू मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें, बट आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो probably on Monday. So till then please like, share, comment, subscribe, share and if you want आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करो जिनको मैथ्स पसंद नहीं है या जिनको बहुत पसंद है. यू नो वी गाइज कैन रिलेट टू ईच अदर. ओके, सो बाय बाय.